Hello, friends. A very warm welcome to this very brief episode where we are discussing what is actually the syllabus demand for disaster management. Because the mains examination, as we can see, that when we are about to write mains, when we have done this syllabus and also number of topics throughout the year, then still also as a part of a reassessment exercise before examination, how we can see this. So this is for both the purposes, for a broad idea and also for making oneself very clear and very quick, precise. If I am having a very little time, then what I should actually do, say within couple of hours, if I want to revise, or maybe for maximum 6 hours. So first topic is saying conservation. The conservation is a very broad term. So let's see conservation from that side only. Okay, this is conservation. If I can show it to you, conservation. Another term is environmental pollution and degradation. And third term is environmental impact assessment. Very broad theme. And finally, you have disaster and disaster management. So, what first of all, what comes to mind directly? That in terms of conservation, then we must know. For example, there is a chapter in India Air Book which we have covered also. Environment chapter is there, which we have covered from the perspective of prelims. That actually gives us hint that what are the aspects of conservation. Because conservation means tiger, even if I say very broadly, then wildlife is a one broad area. Wildlife conservation, forest conservation. We have done that because it's very difficult to go through all the things again and again. So that is why I'm just sharing, because we have consistently done newspaper and also current affairs and also a holistic understanding. So tiger, elephant, for that matter, snow leopard, cheetah. This is one aspect, or even endangered species. Then another aspect comes of institutions, because it is not talking about institutions. Conservation के institutions भी हैं. Then institution, national institution, international institutions, and even task forces. Then what are the steps taken in order to prevent poaching, or for that matter to combat wildlife trafficking? So this is one holistic aspect. So what exam will do? Exam will ask for critical assessment, say of, for example, 4 or 5 big very acts. So Wildlife Act is there. When once we just Google what are the acts on wildlife, then you get a whole list of 3 4 things, and that comes into conservation. So that is why one question would be there on conservation as far as national or international level is concerned. And from that perspective, we have to see sites, or for that matter, IUCN, or for that matter, uh, there are even bilateral relations between countries, with India, with the rest of the India with Africa, and for that matter, a couple of other countries, or maybe other continents. This is what is going to be happening in conservation, because we will see answers, because we're going to see answers also. But first, we are trying to brainstorm in a very non-technical manner. If we go technically, then there will be list of at least 50 institutions. But the question arises, is it important to do all those 50 institutions? Is it important to, mug up yourself with everything under the sun? No, it is not important. So we have to see if in last 1 to 1.5 years or 2 years, what Prime Minister Sir has said about conservation, where he has gone. He has gone to Kaziranga, he has gone to, Bandipur, or even a documentary was made which got Oscar also with respect to, elephant in Netflix series. So, what we have to see in conservation is, as I told you, that it will come into terrestrial conservation also. So we have done a whole series of environment for the prelims perspective. If you can just recall, aquatic was there, terrestrial was there, land was there, everything was there. So please think of the applied part of that. That's all we have to do. And easily, combating desertification, or even marine wildlife, or even aquatic. That way we will give you have to just know a basic idea about, in marine also you must know fresh water, salt water, and that's all. And whatever has been in news little bit, if something extraordinary has happened, that's how the conservation can be tackled. Nobody is going to ask you very fine details of even forest act. They are going to ask you what is impacting the masses. For example, hydrological project is going to be there in, say, Arunachal Pradesh, or for that matter in Uttarakhand, or for that matter in certain part of, say, for example, coastal India. If you talk about wind project, so black, जैसे Great Indian Bustard hai, we have to look for symbol Great Indian. That's all. It's enough. Next comes environmental pollution. This is a favorite area because it is so much related, especially if we talk about North Indian cities and other parts of India. Air pollution is there. Then we know about it. We have handled that.
Degradation also we have handled. But in degradation, the problem that candidate faces when the examination asks you what steps you will take. Say for example, illegal sand mining. What are you gonna do for sand mining? तो ज्यादा कुछ लिख ही नहीं पाते, बहुत जेनरिक आइडियाज आते हैं. तो वो थोड़ा देखना है, यू नो, थोड़ा देखना है कि एज फार एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कंसर्न, तो उसमें जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की बात सोचनी है. उसके अंदर हमें नमामि गंगे प्रोग्राम से लेकर और कैसे कार्बन इमिशन को रोकने की बात है वो भी डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि पेपर हैज बिकम वेरी अप्लाइड. अगर हमारे पास देर आर इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, आयरन, दे आर इवन emitting so much of carbon, so you can say government is also going to give them certain kind of concession if they are going to adhere certain protocols. अपने आप लिख दो और एक दो एक्ट देख लीजिए बस. Then environmental impact assessment, the best part about it is go to the site, go to the Google site, just read about environmental impact assessment and also the project names. And please do one thing more, what NGT had said, what kind of cases NGT has taken in last 1 year, that will be enough for us. Coming to disaster and disaster management, again, most important and basic thing is go to the site of NDMA and understand certain states that what kind of disaster preparedness is different in a hilly state or to that of a plain areas, or for that matter of a coastal area. Because what are the difference between disaster management when we speak about cloud burst to earthquake to cyclone, or for that matter even industrial industrial accident, especially in Telangana and Andhra Pradesh, we have seen that industrial safety things. And for that matter, bigger events like, bigger, जैसा जो भी ज्योग्राफी में हमने पेपर में वहां पे हमने देखा, तो उस वाला एस्पेक्ट आ जाएगा. Then most important thing is that you must know a certain international treaties. बस, क्योंकि उठाएगा, because coaching or even our rote learning, they don't allow us to explore and think creatively. और आएगा आसपास से, it will be very mainstream and it will be very simple. Rest we will do personal exercises and we will discuss, because we have also made a list of things that we can see. Now let's see 2013 में क्या पूछा. How important is the vulnerability and risk assessment for a pre-disaster management? मर गए, प्री डिजास्टर तो कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं क्योंकि हम सीधा डिजास्टर रखते चले गए. तो प्री डिजास्टर तो सोचा ही नहीं कि भाई प्री डिजास्टर क्या होता है. तो एग्जाम में 7 मिनट में आप क्या लिख दोगे उसके अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री डिजास्टर यानी कि हमें एक 2 पेज का, 2 पेज ज्यादा हो गया, 1 पेज का एक शॉर्ट नोट रेडी रखना है, जिसमें हमें उड़ीसा मॉडल, जिसमें हमें सिक्किम मॉडल, जिसके अंदर हमें 4 वर्ड आ जाए बस बोलते ही. सिक्किम में अगर ग्लॉफ आता है तो क्या करता है भाई वो, उड़ीसा में साइक्लोन आया था तो लोग क्यों नहीं मरे, बंगाल में साइक्लोन इज कमिंग अप, देन हाउ पीपल आर सेव्ड, नॉट इवन अ सिंगल लाइफ इज लॉस्ट. तो वो आपको बस थोड़ा सा देख लेना है. रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, रोल ऑफ सिविल वॉलंटियर्स, रोल ऑफ होमगार्ड, रोल ऑफ पंचायत, रोल ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल ऑफ इसरो, रोल ऑफ आईएमडी, रोल ऑफ certain groups of secretaries and district collector who are food, shelter and health. हो गया बस. Coming to the question number 1 in 2014, the longitudinal making of high risk areas for piracy was moved from 65 degree east to 78 degree east in Arabian Sea by the International Maritime Organization. What impact does it have on Indian maritime security concerns? So this is with respect to piracy. यानी वही बात है जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं. व्हेन यू स्पीक अबाउट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा मैप का क्लैरिटी से आइडिया होगा, तो आधा नंबर इसमें फालतू मिलेगा. बाकी द पॉइंट्स रिमेन जनरल विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर सो मेनी अदर डिस्कशंस एंड सीरीज, वो रिमेन सेम रहेंगे. Coming to question number 2, drought has been recognized as a disaster in view of party expense, of its party expense, temporal duration, slow onset and lasting effect on various vulnerable sections. With focus on 2010 September guidelines from the National Disaster Management Authority, discuss the mechanism for preparedness to deal with El Nino and La Nina fallouts in India. यानी कि दोनों एरिया पूछ लिए उसने. यानी जब मानसून एक्सेस आएगा तब क्या होने वाला है, तब भी क्योंकि क्या है वो देयर इज अ सॉइल इरोजन, फ्लैश फ्लड्स आर गोइंग टू इरोड इट. एंड देन व्हेन यू आर हैविंग डेजर्टिफिकेशन, तो आपको गुजरात देखना है, आपको राजस्थान देखना है, आपको लोकस्ट का भी देखना है, आपको मतलब कि गाइडलाइंस तो जनरली रहेंगी. 5 पॉइंट ले लो गाइडलाइंस के, विच आर ऑलवेज इन द वर्क. वो न्यूज में तो आती नहीं है जब तक जरूरत नहीं होती. So you have to talk about Jaisalmer, Badmer, sand dunes, and then you're a part of Telangana. Then that's all. It will be I think we can easily, take up certain aspects, 4, 4, 5 point, and that's all. It will be done. Frequency of earthquakes appear to have increased in Indian subcontinent. India's preparedness, बस खत्म. अभी 6 महीने पहले, 2 महीने पहले दिल्ली में there was a drill done. Okay, so one has to see a drill. So state level,
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऐसा करके बना दीजिए उसका। तो एंड व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट इज हाउ इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेटिंग इंपैक्ट है सिग्निफिकेंट गैप्स। गैप बोल रहा है लेकिन गैप की बात नहीं कर रहा है कि यू राइट अबाउट गैप्स, इट इज आस्किंग डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स। तो आप गैप बताइए, गैप है आप उसमें लेके आइए, आप उसके अंदर लेके आ सकते हो बड़े आराम से। इज आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू दैट हाउ यू नो जो हमारी दिल्ली मास्टर प्लान या फिर स्टेट मास्टर प्लान की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो नहीं होती हैं। उसके बाद जो है लॉबी बन गई है, उसके बाद जो है कोर्ट में केस चलता रहता है। वही 4 5 6 बातें जो आप खुद सोच के सफर कर रहे हो। आप जहां बैठे हुए हो अगर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या आपको पता है आपकी जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है? खुद ही को नहीं पता। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। With reference to NDMA guidelines, discuss the measures to be adopted to mitigate impact of recent incident of cloudburst in many places of Uttarakhand. फिर वही NDMA आ गया and we have done that. फिर आ गया December 2004 tsunami havoc on 14 countries including discuss various factors responsible for occurrence of tsunami and its effect on the life and economy. तो जबरदस्ती ज्योग्राफी नहीं घुसानी है, फैक्टर छोटे छोटे बताए बट देन टॉकिंग अबाउट एन लाइफ एंड इकोनॉमी। तभी डिजास्टर का क्वेश्चन है ये, लाइफ एंड इकोनॉमी, कि कैसे लोगों की जिंदगियां अल्टर हो जाती हैं, कैसे फिशरमैन 2 2 महीने तक शिप फिश में नहीं जा सकते, कैसे लोगों के पास और कोई स्किल नहीं है, कैसे लोगों के पास और कोई लाइवलीहुड भी नहीं है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क। तो भाई वही बात है, सिर्फ वो नहीं है कि आपने हाथ में एक वो सैटेलाइट फोन दे दिया और इधर यू हैव गिवन सर्टेन काइंड ऑफ एडवांस किट इन द हैंड ऑफ फार्मर या फिर फिशरमैन या फिर कोस्टल कम्युनिटी। उससे कुछ नहीं होने वाला। एकदम उन्हीं की भाषा में लगातार ड्रिल, 2 2 महीने में उनकी बातचीत करना, उनकी लाइफ में इंटीग्रेट कैसे कराओगी, तब स्कोर आएगा हमारा ज्यादा। कैसे उन्हीं की भाषा में उनको ड्रिल करा के उन्हीं के जीवन का पार्ट बना देंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट को। Coming further, describe various measures taken in India for disaster risk reduction before and after Sendai framework. वही है, जैसा as I told you, just check out 2 4 treaties and this framework is different from the Hyogo framework of action 205, क्योंकि उस टाइम हुआ हो रहा था वो 2000, इसीलिए 2018 में आ गया, क्योंकि 15 में बात हो रही है, 17 तक आते आते लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, 18 में क्वेश्चन आ गया। Coming to the vulnerability is an essential element for defining disaster impact and its threat to the people. हाउ एंड व्हाट इन व्हाट वेज कैन वनरेबिलिटी टू डिजास्टर, अगेन रिपीट हो गया, कहां जाओगे, सिलेबस से पूछना है। आप वनरेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे डिजास्टर के लिए, करोगे भाई। आपने 4 कार खरीद ली, शिमला में घुसनी एक भी कार नहीं चाहिए, पर आप जी हो जी बड़े लोग, आप 4 कार लेके जा रहे हो, आपके पास पैसा है, पोल्यूशन का चालान भी दे रहे हो, तो हो गया बस। यही कैरेक्टरिस्टिक है, आने वाले 10 साल के बाद वहीं पेड़ गिरने वाले और वहीं पे जब सब कुछ होने वाला है। वनरेबिलिटी बहुत देर में दिखती है। मैं तो शादी करूंगा जी, मेरे को तो मैं शादी जो है मसूरी में ही करनी है, मसूरी में 5 स्टार होटल बना के वहीं सब कुछ चलेगा। अरे क्यों चलेगा भाई। तो वनरेबिलिटी वही है, आपके पास जुगाड़ है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने बना दिया दबा के जी। अब जितने कैंटोनमेंट हैं इन उत्तराखंड, दे आर नाउ ओपन फॉर सिविलियन पर्पसेस। नाउ सारा का सारा रूल रेगुलेशन चेंज, सब नेताजी के बनेंगे, नेताजी और बाबूजी दोनों लोगों की बिल्डिंगें बनेंगी। फिर बाद में जो है धरती जो है अपना धराली बनाएगी वहां पे, क्या करेगी अब। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, वनरेबिलिटी है, क्यों क्यों होता है फ्लैश फ्लड से बार बार पानी आता है फिर भी हम सुधरते नहीं है, बहुत रियलिस्टिक आंसर चाहिए। डिस्कस प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब मैं क्या करूं भाई, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। एक्सप्लेन हाउ हजार्ड मैप जोनेशन मैपिंग विल हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट। हिंदुस्तान में तो हजार्ड जोनेशन मैपिंग के लिए भी 100 करोड़ 200 करोड़ चाहिए, वो यूएस में होती है जहां पे लोग ही इतने थोड़े हैं, पर फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। आप अर्थक्वेक में बताओगे कैसे हो रहा है, आप फ्लैश फ्लड का एरिया डिफाइन करोगे, आप डेजर्ट का एरिया डिफाइन करोगे, आप उसके साथ साथ जो है क्लाउड बस्ट की भी अब तो डिफाइन हो गए हैं। बिहार जैसे राज्य में हर साल हजारों की तादाद में लोग बिजली से मर जाते हैं, आकाश से बिजली चमकती है और उससे मर जाते हैं, यू नो। या फिर आप बोलो कि मैन मेड डिजास्टर की बात हो रही है, यहाँ तो सिर्फ जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, तो मैन मेड डिजास्टर भी लेके आओ। रेलवेज का है, एरोनॉटिकल का तो हमने देखा ही है अभी रिसेंटली हॉरिबली, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू हाईवेज तो आप अपने आप बना दो थोड़ा सा, लेकिन रियलिस्टिक, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट, देर इज नो स्कोप। Disaster, discuss the recent measures initiated in the disaster management by the government of India, departing from its earlier reactive approach. Same question again, सेम क्वेश्चन, रिएक्टिव अप्रोच अब कुछ नहीं है भाई, ठीक है आप प्रोएक्टिव हो गए, आप प्रोएक्टिव पहले भी थे लेकिन उसको आप रिएक्टिव बोलोगे। डिस्कस द वनरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स। ओ माय गॉड, गिव एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द salient features of major disaster caused by earthquakes in various parts of India during last decades। क्वेश्चन का स्कोप बढ़ गया,
यानी आपको इंडिपेंडेंस के बाद कितने साइक्लोन आए हैं, इंडिपेंडेंस के बाद कितने अर्थक्वेक्स आए हैं, इंडिपेंडेंस से लेके अभी डेजर्ट का क्या ट्रेस हो रहा है जी। चैट जीपीटी भैया को बोलो 5 मिनट के अंदर 100 वर्ड का निकाल के दे देगा। आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे निकालना क्या है। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, आ गया भैया। मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अरे हर कोई गया है शिमला, तो हर कोई कहीं ना कहीं पहाड़ों पे कभी ना कभी तो गया ही है। देखा है बेचारे पहाड़ों को साइड में जो है उनकी जान निकाल रखी है, पत्थर काट काट के, और साथ में हमने वो तार लगा, और फिर हम कहते हैं 5 साल बाद सड़क पे गिर गया। तो गो फॉर बेसिक पॉइंट्स, गो फॉर 5 पॉइंट्स, इमीडिएटली राइट इट, एंड दैट्स ऑल इट विल बी डन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बस्ट, आ गया, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। डिस्कस टू रिसेंट एग्जांपल्स, अब क्या करे एग्जाम भी भाई, बच्चों ने वो भी रट लिया है। अब भैया एग्जाम्पल देखता हूँ रट के आएगा नहीं रट के आएगा, तो एग्जाम्पल का नाम पूछ लिया। जिसने एग्जाम्पल नहीं लिखे 10 में से उसके 5 4 आने थे, 2.5 आएंगे। यानी वेरी 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 मच वेरी मच एट द विंस एंड फैंसीज ऑफ द एग्जामिनर। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, सी वी वर टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक, टेक्निक पूछ रहा है। टेक्निक आप बताओ, केरला याद करो, वहां तो जमीन ही नहीं है, बात बात के ऊपर आप जो है घर बना रहे हो, तो उसको रोक के रखो, इरोजन को रोक के रखो। टेक्निक एक ही है, तुम बाज आ जाओ। इंसान अगर बाज आ जाएगा वही टेक्निक है, बस इंसान को दिमाग में रखो और जो मन में आए वो लिख दो। माधव गाडगिल जी, उसके बाद बाकी वेस्टर्न घाट की रिपोर्ट क्या कर लेगी, वेस्टर्न घाट की रिपोर्ट, वायनाड तो हो गया, अब वायनाड नहीं आया था, वायनाड आ जाएगा। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, फिर से वही आ गया जी। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट कर दिया हमने, 2 बार दे दिया क्या। 2021 में, उसके बाद आपने 2022 में सेम क्वेश्चन हैज कम अप अगेन। ओके, प्लीज क्रॉस चेक दैट, वी हैव नो इश्यूज। डैम फेलियर आ गए अब देखो क्या करे एग्जामिनेशन। सिलेबस क्या था, चलिए चल के सिलेबस देखते हैं पहले। सिलेबस कह रहा था कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब उसमें आप समझ लो डैम है, आज डैम है, कल जो है वो हाइड्रो पावर सेक्टर का कुछ आ जाएगा, परसों जो है फिर वो कोल पावर का भी आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका क्या बोलूं मैं, फिर धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी बड़ी ये जो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैं इन पे आ जाएंगे। डिजास्टर तो कहीं पे भी हो सकता है। फिर अब आने वाला है, भारत के जब इतने ब्रिज गिरेंगे तो वो भी डिजास्टर बना दिया जाएगा भारत में। तो मोरबी से शुरू हुआ था, और बिहार की तो बिहार ने तो लंका ही लगा दी। तो आप समझिए हमने जो अभी तक कवर किया है उस कवर के अंदर से ही चीजें हैं, बस खुश रह के बुद्धि जगा लीजिए। स्पेशली द डाउन स्ट्रीम साइड बोल रहा है कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एनालाइज द वेरियस कॉजेज ऑफ डैम फेलियर, गिव 2 एग्जांपल ऑफ लार्ज डैम फेलियर। अब पता है एग्जाम्पल नहीं ला पाएगा, तो इसीलिए 3 नंबर से ऊपर आपको नहीं मिल सकता। तो मेरी बात मानिए, हमारे पास सब कुछ है। चैट जीपीटी भैया फिर से बोल रहा हूँ, चलो आपको चैट जीपीटी पसंद नहीं, जेमिनी दीदी को ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप 5 7 वर्ड लिखकर निकाल दीजिए भारत के। ये नहीं बोल रहा अभी प्री लिबरलाइजेशन पोस्ट लिबरलाइजेशन, फेल हो गया भाई नाम बता दे, क्योंकि क्विज चल रही है ये, तो नंबर चाहिए तो कर लो। और आगे कुछ भी हो सकता है, अब वेटलैंड नहीं आया है, वेटलैंड आ जाएगा। व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, अब भाई ऊपर वनरेबिलिटी पूछ ली 2 बार, तो क्या करे, वर्ड बदल के फिर से रेजिलियंस पूछ लिया, बात वही है, बात तो वही है, लेकिन उसका भाषा बदल के लिखना है। हाउ इट इज डिटरमाइंड, डिस्क्राइब्स वेरियस एलिमेंट ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, आल्सो मेंशन ग्लोबल टास्क फॉर स्टैंडर्ड। आ गया जी, फिर से वही आ गया, अब क्या करें, अब सिलेबस में से ही पूछना है, फिर से वही बात है। क्रोकोडाइल के दांत तोड़ोगे मान लो, तो क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे, आएगा तो क्रोकोडाइल पे ही। फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज, इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, डिस्कस कॉजेज ऑफ डिजास्टर। पेपर 1 में भी यही पूछ रहा है, 2 में भी यही पूछ रहा है, 3 में भी यही पूछ रहा है, केस स्टडी में भी यही पूछ रहा है, और 4th में पेपर में भी यही आ रहा है। यानी क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। मेंशन द फीचर्स ऑफ 2 मेजर फ्लड्स इन लास्ट 2 डिकेड। अब देख लो, जानता है वो कि आया है पेपर देने, जो हमारा हीरो हीरोइन आ रहे हैं, वो 5 दिन के कोचिंग उनको बोलती है आ जाओ मेरा कोर्स करो और मैं सब करा दूंगा। तो एग्जामिनर भी वहां पे जो पेपर के बैठे हुए हैं, दे ऑल्सो नो वेरी वेल दैट वेयर वी हैव टू पुट द यू नो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है। सो माई पर्पस हेयर इज टू जस्ट इन्वोक क्यूरियोसिटी एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट यू बिकम स्मार्ट। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ टिप्स कि देखो मैंने बोला यही आया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत कुछ ऐसा जो हम कर चुके हैं और कर रहे हैं वही आएगा, लेकिन आपको एक लिस्ट बनानी है, 2 घंटे का काम है, बुद्धि लगानी है उसके अंदर, आप उसको बना के तैयार कर दीजिए और आपके ही वो काम आएगी। चाहे फिर वो सिक्किम हो, सिक्किम की प्रॉब्लम अलग है, तमिलनाडु की प्रॉब्लम अलग है, अरुणाचल प्रदेश की प्रॉब्लम अलग है, आसाम जो है साल में 6 महीने कहीं ना कुछ डूबा रहता है,
नहीं डूब रहा है तो सूखा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश भी डूबा हुआ है, प्रयागराज भी डूब गया था, वाराणसी भी डूब गया है, हरियाणा का तो पूछो ही मत। ठीक है, गुड़गांव तो है ही सबके लिए, गुरुग्राम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज इन इंडिया एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4-5 ट्रीटी, वाइल्ड लाइफ, और साथ साथ में लैंडस्लाइड, साथ साथ में क्लाउड बस्ट, साथ साथ में जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है, जो जिसकी वजह से चीजें होती हैं, बस इतना आप कर लीजिए एंड आई थिंक हाँ फेयर इनफ 30-40 मार्क्स का आराम से हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी सर। सो हाँ यू यही कैन ये add हुई your रिपीटेड points। है सर। थीम्स हुई रिपीटेड, बहुत लिमिटेड है, तो उस पे नहीं आगे जाएगा, एडवांटेज एग्जामिनर यही है आगे सर जा कि सकता है, हाँ स्कोप है कितने। उनके पास, हम्म। स्कोप पूरा है। जी। ऐसा नहीं हाँ। है कि जो, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे एग्जामिनेशन अपनी पोटली खोलता है ना, हम्म। हाँ जी। एग्जामिनेशन है वो। ऐसा नहीं है हाँ। ना कि अब तुम बोलो कि चलो सर मैं तो ना डाइवर्सिटी ऑफ फ्रॉग्स बहुत है वेस्टर्न घाट में, उस पर रिसर्च करके हम लिखते हैं, फ्रॉग आ जाएगा, फ्रॉग नहीं आएगा। नहीं वो तो नहीं सर, ठीक है, रियल। बात हाँ। समझिए, तो आना है, आना है। अब फॉरेस्ट फायर नहीं आई है अब तक, हाँ हमने फॉरेस्ट प्रीलिम्स में कवर भी इंडस्ट्री। किया था। फॉरेस्ट हम्म। फायर नहीं आया है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि ग्लोफ, जो ग्लेशियर लेक, वो नहीं आया है। सो जी। आप जब तक थोड़ा सा क्यूरियस होकर एक लिस्ट बनाकर नहीं रेडी करके रेडी रखेंगे, तो जी। तब तक चांसेस ये हैं कि वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थीम्स थ्रू आवर न्यूज़पेपर्स एंड देन वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग सेपरेट थीम्स नाउ, बिकॉज वी हैव जी। टू रेज द लेवल, इट इज ऑल अबाउट माइंड। यू हम्म। कैन नॉट बिकम ए विकसित राष्ट्र विदाउट बिकमिंग विकासशील। जी। अमेरिका ने कुछ नहीं किया है, अमेरिका ने 50 साल तक यूरोप को पाला, जर्मनी को पाला, इंडिया को तो कुछ नहीं दिया। हम्म। यूके तो हमें लूट के गया था, हमें क्यों नहीं दिया मार्शल प्लान? हाँ। हम भी बन जाते। लेकिन क्या हमारे ऊपर भी एटम बम गिराएगा तभी जापान का रीडेवलपमेंट हुआ ना। हम्म। तो बात हाँ। समझिए, तो इसीलिए बस थोड़ा सा साइड पे जाइए, जी। रिसोर्सेज हैं, आराम से इसको करके एंड देन वी कैन रियली क्रिएट अ फ्रेमवर्क आउट ऑफ इट एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दैट। सो दिव्या, व्हाट यू लाइक टू कंक्लूड विद, बी क्विक। सर ह्यूमन लाइफ को किस तरह से सिक्योर रखा जाए और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन के उससे फोकस करना है सर लिखते टाइम। बिल्कुल, एनजीटी एक बार देख लो, एनजीटी का आ जाएंगे 10-20 केस हो गए बस। हाँ जी। हाँ सर। So thank you very much to all of you, and thank you Mansi for moving forward and working smart. And we have to move on. Thank you Divya for all the efforts that you're trying to put, and everyone else also. And the goal is again to continue the exercise in a smart way, because it is your smartness which will decide the course of action, not anything else. Obviously, your smartness is dependent upon so many factors, like we have discussed about the disasters. So our goal is also to create such pedagogy, and in fact we have been working from the same mindset, that how to avert disasters and how to have a strategy which will mitigate disaster under all circumstances. I'm not saying we are the best, but I'm just saying we are continuing the process honestly, and we will continue to do so under all circumstances. Thank you for being with Ansarkari and its different courses.